वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं थर्ड लेवल के पार्ट 2 के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। I turned into Grand Center from Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you take train like the 12th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I come up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं Grand Central स्टेशन की तरफ से Vanderbilt Avenue की तरफ मुड़ा and went down a step to the first level और पहले फर्स्ट लेवल की तरफ अपने स्टेप्स को बढ़ाया. Where you take trains like the 20th सेंचुरी, जहाँ से तुम्हें 20th सेंचुरी की जैसी ट्रेन्स मिलती हैं. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. उसके बाद मैं दूसरे लेवल की तरफ बढ़ गया. वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगर की जो ट्रेन होती हैं वहाँ वहाँ से लीव करती हैं. डक्ड इन टू द आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. मैं आर्क यानी कि धनुष के आकार की जो डोर था, गेट था, वहाँ से आगे बढ़ा जिसके ऊपर हेडिंग लग रही थी सबवे की. एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया. दैट्स ईजी टू डू, यह सबसे आसान काम है करना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंटर 100 ऑफ टाइम. इससे पहले भी 100 बार से ज़्यादा मैं ग्रांड सेंटर स्टेशन से इस तरह से खो चुका हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. पर मैं हमेशा किसी एक नए दरवाजे पर, किसी सीढ़ियों पर या कॉरिडोर, किसी गलियारे पर निकला हूँ. Once I got into a tunnel into a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार मैं एक टनल से बहुत लंबा गया और मैं कहाँ निकला, एक रूजवेल्ट होटल में. Another time I come up in an office building on 46th Street. और एक बार और इसी तरह से मैं 46th स्ट्रीट पर 3 blocks अवे जो बिल्डिंग है उसके ऑफिस में निकला. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी कभी मुझे लगता है जो Grand Central है वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है. Pushing out new corridors and staircases like roots. वो अपने जो रूट्स जैसे कि होता है एक पेड़ का, उसी तरीके से अपने कॉरिडोर्स और staircases को बाहर निकालता रहता है. There are probably a long tunnel that nobody knew about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. संभवतः यहाँ एक लॉन्ग टनल हो सकती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता. इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. हो सकता है इसका जो रास्ता है वो सिटी से होकर जाता हो, या फिर टाइम्स स्क्वायर से, या फिर एक अलग सेंट्रल पार्क से. मे बी हो भी सकता है. बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट. कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, लोग हैं जिन्होंने ग्रैंड सेंट्रल को एक एग्ज़िट यानी कि बाहर जाने का या फिर इस्केप करने का एक रास्ता बताया है. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. शायद इसी वजह से मुझे ये टनल मिली. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. पर मैंने इस आइडिया के बारे में अपने फ्रेंड को नहीं बताया है. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. बट आई kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. Then I heard the sort of hollow roar, a heat that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and come out on the 3rd level of Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller, and there were
fewer ticket windows and train gates. जिस कॉरिडोर में मैं था वहाँ से मैं लेफ़्ट की तरफ मूव किया एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की ओर गया. स्लेंटिंग का मतलब होता है तिरछा, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे जाना, नीचे की तरफ जाना. आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. मुझे लगा कि ये गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. पर मैं फिर भी चलता गया. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. और मुझे जो भी सुनाई दे रहा था उस टाइम पे वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खुद के फुटस्टेप की, मतलब खुद के चलने की आवाज़ थी. उसके अलावा मुझे किसी की भी आस-पास सोल की भी आवाज़ नहीं आई थी. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. उसके बाद मुझे एक आवाज़ सुनाई दी. इसका जैसे कि ऐसा लग रहा था कि जो पीपल्स हैं वो एक किसी ओपन स्पेस में बातें कर रहे हैं, और उसकी आवाज़ जो थी एक खोखले भाग से मेरे पास तक आ रही थी. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. जो टनल थी वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हो गई. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. और मुझे एक छोटी सीढ़ियों से होते हुए बाहर छोड़ दिया. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और मैं उस स्टेयर्स के बाद में एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सेकेंड लेवल पर वापस आ गया हूँ. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. पर मैंने देखा कि जो रूम था वो बहुत ज़्यादा छोटा था और उसमें कुछ ही टिकट के विंडोज़ थे और ट्रेन के गेट थे. मतलब कि ये सेकेंड लेवल था. And the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shades and long black sleeves protectors. The lights were dim and short of flickering. Then I saw why. They were open flame gaslight. जो इन्फॉर्मेशन बूथ था सेंटर में बहुत ज़्यादा पुराना था और लकड़ी का बना हुआ था. एंड जो मैन उसके बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर की आई शेड्स और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स के प्रोटेक्टर पहन रखे थे. और जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा डिम थी, फ्लिकरिंग हो रही थी. और जो चार्ली है उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने देखा कि वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स लगे हुए हैं, यानी कि वहाँ पर लैम्प का यूज़ हो रखा था. There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and forward. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black hand-lever mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustache in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutant sleeves and skirt to the top of her high-bottomed shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Curvier and Eve's locomotive with a funnel-shaped stuck, and then I knew. There were brass spittoons on the floor. वहाँ पर फर्श पर पीतल के थूकदान थे. And across the station a glint of light caught my eyes. और स्टेशन के पार रोशनी की एक चमक पर मेरी नज़र पड़ी. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक जो आदमी था वो अपनी वेस्ट की पॉकेट में से गोल्ड की वॉच को बाहर निकाल रहा था. He snapped open the cover, glanced at watch and frowned. उसने ढक्कन खोला, अपनी घड़ी पर नज़र डाली और अपनी जो भौएं होती हैं वो सकोड़ ली. He wore a derby hat. उसने एक डरबी हैट पहन रखा था. A black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black hand-lever mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी. मैंने चारों तरफ देखा स्टेशन और पाया कि स्टेशन पे जो भी था उसने उसी तरीके के कपड़े पहन रखे थे जो कि 1890 के समथिंग में पहने जाते थे. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, इतनी
फैंसी मूछें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक वुमेन ट्रेन के गेट से बाहर निकली। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ म्यूटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई ब्यूटन शूज़। उस औरत ने एक ड्रेस पहन रखी थी जो कि उसके टांगों से थोड़ी सी नीचे थी, जिसे उसने अपने ऊंचे बटन वाले जूतों के साथ पहना हुआ था। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and eaves locomotive with a funnel-shaped stuck. And then I knew. उसके पीछे पटरियों पर मैंने एक लोकोमोटिव की एक झलक देखी, एक फनल के आकार के ढेर के साथ, एक बहुत छोटा क्यूरियर और इव्स लोकोमोटिव। तब मुझे पता चला। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the World, and the World has not been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found different page since in the public library file, and it was printed June 11, 1894. यह सुनिश्चित करने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय के पास पहुंचा और देखा उसके पैरों में पड़े हुए न्यूज़पेपर को। यह द वर्ड था। द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर। और जो द वर्ड न्यूज़पेपर था वो पिछले काफ़ी टाइम से पब्लिश नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो लीड स्टोरी थी उस प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में उस पर दिया हुआ था। I have found that front page since in the public library files, and it was printed in June 11, 1894. और मैंने यह पेज पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा है जिसको प्रिंट किया गया था जून 11, 1894 में। I turned towards the ticket window, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy a ticket that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy a ticket that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. मैं ये सुनिश्चित करते हुए कि मुझे वहाँ से मैं वहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ, मैं टिकट विंडो की तरफ बढ़ा अपने और लूसिया के लिए टिकट खरीदने के लिए, जो कि मुझे यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं इन द ईयर 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट टू गैलिसबर्ग, इलिनॉइस। और मुझे गैलिसबर्ग के 2 टिकट चाहिए थे। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, विद बिग old frame house, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead the roof of the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around. In a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. Have you ever been there? क्या तुम कभी वहाँ गए हो? It's a wonderful town. वो बहुत सुंदर टाउन है जिसके big old frame houses हैं, huge lawns हैं, बहुत बड़े बड़े lawns हैं, terminous trees हैं जिनकी branches जो है वो स्ट्रीट की रूफ से मिलती हैं 1894 के कैसलबर्ग में। समर इवनिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जैसे कि नॉर्मल डेज़ में होती है, उससे दुगनी होती है। एंड जो पीपल होते हैं वो अपने लॉन्स में बाहर बैठ जाते हैं, और जो मैन होते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, सिगार को पीते हैं और बहुत क्वाइटली वो बातें करते हैं। और जो वुमेन होती हैं वहाँ पर वो पाम लीफ का फैन यानी कि जो पंखा होता है हाथ वाला वो झल रही होती हैं विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और जो फायर फ्लाइज होती हैं वो आसपास घूमती रहती हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत शांति से भरे हुए दुनिया में।
टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विल स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। और अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 20 ईयर्स हैं एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के 40 ईयर्स हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर डैट, और मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।